नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश शर्मा समाधिया और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। 3 दिन तक समागम चला, अब ये लोग अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे, इन्हें यहाँ पर कैसा लगा, जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया कैसा रहा, भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसी रही, तमाम सुविधाएँ कैसी रहीं। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। आप देख सकते हैं हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। एक तरफ बहनें हैं, भाई भी हैं, इनसे ही जानते हैं हम। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम खुशी दासी है। खुशी दासी जी, बताइए, हाउ डिड यू स्पेंड योर टाइम हियर? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द मोमेंट दैट यू स्पेंडेड हियर, एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस ऑल द एक्सपीरियंस दैट यू फेस, दैट यू realized in this Satlok Ashram Shamli Vedkhedi? Sir, I was so happy in the past 3 days. I can say the last 3 days were my most happiest 3 days in the past 1 year. And now I'm feeling way too emotional when I'm going back to my home and eagerly waiting for the next Samagam, which is on 9th, 10th and 11th June 2025. Okay. So, will you attend that program also? Yes, sir, for sure I will attend that program also. Want to know that what type of facility did you get here? Tell. So I think I will tell you numerous things that we face here. The facilities are top notch, I will say. And when it comes to hygiene, it is top notch. When it comes to food, it is top notch. The quality of food and obviously the behavior of Sant Rampal Ji Maharaj, the followers of Sant Rampal Ji Maharaj is also, they are very 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 kind and they provide you everything. If you are saying please give me one pen, they will provide you that pen from anywhere. So I want to know that what is the aim of Sant Rampal Ji Maharaj? What type of society he wants to create? Sir, the aim of there are numerous aims of Sant Rampal Ji Maharaj, and I'll tell you only 2-3. So first is the aim of Sant Rampal Ji Maharaj is to eradicate the social evils like dowry, bribe, and also animal cruelty. These are the main aims of Sant Rampal Ji Maharaj, and he's also giving knowledge about brotherhood, and there are numerous ways, numerous aims of Sant Rampal Ji Maharaj that he is teaching us about the true spiritual knowledge which is given to us in our holy scriptures. But it is told about Sant Rampal Ji Maharaj that he is not working for the Hindu religion. He is speaking against Hindu religion. He give his speeches against Hindu religion. So what do you want to say about it? Sir, I think the people who are saying all these things, they need to watch the satsang of Sant Rampal Ji Maharaj. As he mentioned, our Guru Sant Rampal Ji Maharaj Ji mentions about every holy scriptures of each and every religion in his satsangs, and he tell about everything. The main lines of Sant Rampal Ji Maharaj are जीव हमारी जाति है, मानुष धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा. So, Khushi, tell me, what are you doing right now in your qualification, in your work? Sir, I'm doing graduation from Delhi University, and right now I'm in my first year. I'm doing English honors. Okay. So you are just doing the graduation and you are educated youth, and want to know that why mostly the educated guys are want to join Sant Rampal Ji Maharaj, because I'm just watching that the youth is very much inspired with Sant Rampal Ji Maharaj, with the ideology of Sant Rampal Ji Maharaj. So-called saints are too much creating they just try to create the problem to Sant Rampal Ji Maharaj, and they just comment blah blah, Sant Rampal Ji is doing this and that. But youth is very much impressed by Sant Rampal Ji Maharaj. What is the reason behind it? So the main reason behind is his knowledge. He is providing us the true spiritual knowledge according to our Vedas, Gitas and all the holy scriptures, which is the main reason why the youth is impressed and is attracting towards the knowledge of Sant Rampal Ji Maharaj. Thank you so much, Khushi ji, for joining us. What do you want to say? आप क्या कहना चाहेंगे? आप घर पे जा रहे हैं वापस, कैसा रहा ये पूरा माहौल, और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए?
सर यहाँ पे मुझे जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि यहाँ पे सबका बिहेवियर भी अच्छा था और यहाँ पे रहने से लेकर खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत थी। तो मैं यहाँ अब जा रही हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो सर मैं जब यहाँ से जा रही हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि यहाँ पे मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं 3-4 दिन से हूँ। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और यहाँ पे जो मैंने 3-4 दिन यहाँ भंडारा भी किया, तो यहाँ पे भंडारा भी बहुत अच्छा था। और मैं आगे के लिए प्रतीक्षा करती हूँ कि जो 9 जून में है, 9, 10, 11 जून को, तो कब वो टाइम आए तो मैं यहाँ पे फिर से आऊँ। क्या कहना चाहेंगे आप? घरों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, अब आपको कैसा लग रहा है और यहाँ पर आपको कैसा लगा? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा सर। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी हमारे परमात्मा ने जो सुविधाएं दी थी वो बहुत अच्छी थी। परमात्मा ने यहाँ भोजन भंडारा और रहने खाने की पीने की व्यवस्था, यहाँ पे जो महासमागम और बौद्ध दिवस, गरीबदास जी महाराज के उपलक्ष्य में बौद्ध दिवस मनाया गया। और ये जो प्रदर्शनी थी, क्या कहते हैं, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। जो जून में संत रामपाल जी महाराज जी का क्या कहते हैं समागम आने वाला है 9, 10, 11, उसमें मैं ज़रूर आना चाहूँगी। आप क्या कहना चाहेंगी बहन जी, कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? साहिब हमें भी बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम। मतलब हमारा भी मन कर रहा है कि अब अगली बार हम भी आना चाहेंगे यहाँ पर। आप क्या कहना चाहती हैं बहन जी? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? आरती दासी। आरती जी बताइए कैसा लगा ये प्रोग्राम आपको? ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ से हमें बहुत सारे परमात्मा ने आज सत्संग सुनाया। 3 दिन से लगातार यहाँ सत्संग की वाणी चल रही है, अमृत वाणी चल रही है गरीबदास जी महाराज की। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया गया था, एकदम जो भंडारा था वो एकदम निःशुल्क था। निःशुल्क नाम दीक्षा दी गई थी और कोई यहाँ से कोई पैसा नहीं लिया था। एक सुंदर यहाँ पे प्रदर्शनी भी दर्शाई गई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस था तो उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ पे जो सेवादार है उसका माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं फिर आगे जो जून आ रहा है भंडारा, मैं उसमें फिर से आना चाहूँगी। क्या क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया और यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगाई गई और यहाँ पे नामदान निःशुल्क दीक्षा दी गई और सत्संग भी चलाया गया। और संत गरीबदास जी महाराज की जो अमरवाणी थी वो 3 दिन से लगातार चल रही है। आज इसका समापन हुआ है। जो हम घर के लिए जा रहे हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम यहाँ 3 दिन से हैं। मुझे यहाँ पे ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है, फिर मैं आना चाहूँगी यहाँ पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।